Thank you, Ishita Mishra. I, on behalf of management, our chairperson, Srimati Alka Das, and president of BBD Educational Group, Shri Viraj Sagar Das ji, co-patron, vice chancellor of BBD University, Honorable A.K. Mittal ji, other co-patron, Dr. Monica Malhotra, director, Babu Banasi Das Engineering College, as well as the highest executionary of ICPR and ICHR, Government of India Councils, Ministry of Education, Government of India, as well as on behalf of all the participants of this webinar, welcome, and our esteemed guest and second speaker for the day, Dr. Om Ji. Dr. Om Ji is a highly acclaimed academician, and he did his PhD, as we all know, in Bhakti, on the Bhakti, and he has been involved in different university grant commission committees as well as other councils, Government of India Council, including ICHR and ICPRs. And so far as this education policy is concerned, he has been one of the instrumental figure. So it's an honor, sir, to welcome you on this forum, and we are really looking forward for your session. And I once again congratulate organizing committee for having requested sir to grace this forum and of course enlighten us on this important theme. Over to the anchor, Ishita Mishra. Thank you so much, sir. Now I would request Mr. Adarsh Dwivedi to give the formal introduction of our resource person. Thank you, Ishita. A very good afternoon, everyone. तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिलें जमी भर नहीं, आसमां अभी बाकी है. लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी ही सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है. With this motivational line, I would like to call Mr. Om Ji Upadhyay, sir, who has been instrumental to the journey of education. He has a knack of amazing things as an outstanding speaker and being invited at many forums. I would like to call him to address everyone here. He did his master's in ancient Indian history, archaeology, and culture by earning gold medals at undergraduate and postgraduate level both. He was awarded doctoral degree in 2011 by Gorakhpur University. He was also subsequently awarded junior and senior fellowship of university grant commissions. He has contributed more than 65 national and international seminars and participated in more than 120 national and international seminars and a number of workshops, lecture series, and academic conferences. He has been associated with the publication of 6 books, authored and edited 34 research papers and a good number of articles in renowned publishing houses. He is nominated as a member of Maulana Abul Kalam Azad Institute of Oswan Studies, Kolkata. He is also a member of UGC prestigious LOCF committee. I would like to tell you, LOCF stands for Learning Outcome Based Curriculum Framework of History in 2019-2020. He is also a member of the Board of Studies of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi, and Sikkim Central University, Gangatok. Presently, he is serving as Director, Indian Council of Historical Research as Autonomous Organization of Ministry of Education, Government of India. We welcome to you, sir. Please grace us with your knowledge and experience. Over to you, sir. Thank you. Thank you. धन्यवाद. प्रज्ञावाणी और संगीत के शास्त्री मां सरस्वती को नमन. Chief patrons of this FDP Faculty Development Program, Mrs. Alka Das Gupta ji, Shri Viraj Sagar Das ji, Professor Jamkhedkar sir, who is our chairman of ICPR, Indian Council of Philosophical Research, Professor R.C. Sinha, Vice Chancellor of the BBD University, Professor A.K. Mittal sir, Dr. R.K. Chauhan sahab, coordinators, Dr. Sivangi Tiwari,
Dr. Sushim Dubey, Dr. Priyanka Singh, my colleague Dr. Suresh, and student coordinator Sachita, Adarsh, Ayush, Simran, Prakhyat, etc. And listeners, participants. I was a bit confused in the morning that what should be my medium of talk. एक बार मैंने सोचा कि शिवांगी जी से पूछा जाए कि बातचीत का माध्यम क्या रखा जाए। फिर तीन चीजें मेरे दिमाग में आई और अभी एडीएन वाजपेयी सर को सुनने के बाद थोड़ा सा जो मैंने उन्हें अंतिम 10-5 मिनट सुना, जो थोड़ा बहुत भ्रम था भी वो भी दूर हो गया। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश जो हिंदी हृदय स्थल है उससे जुड़े अधिकतर लोग अभी जुड़े होंगे पार्टिसिपेंट्स के रूप में, तो कोई दूसरी भाषा हिंदी के अलावा चुनना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि एक बार ये था कि मैनेजमेंट और इन विधाओं के लोग हैं, इसलिए शायद अंग्रेजी में बातचीत करना ठीक रहेगा। दूसरी चीज, अभी हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। तीसरी बात, जो इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आत्मा से जुड़ा हुआ एक बिंदु है, वो भी मुझे इसी के लिए बाध्य करता है कि मैं बातचीत हिंदी में। ठीक है, मुझे अभी एक मैसेज आ रहा है कि दोनों ही भाषाएं यूज की जा सकती हैं। ठीक है, मैं अपनी बातचीत शुरू करूं और इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बहुत सारे मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं मैं आपको कई बार फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि आज हम जिस रास्ते पे बढ़ने वाले हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। पहली बार किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में भारत में आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद विश्व गुरु शब्द प्रयोग हुआ है, और इवन उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें भी यही शब्द यूज हुआ है, यही शब्द प्रयोग हुआ है। ये पहली बार किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में, उसके मायने बहुत बड़े हैं, मैं भी आपसे चर्चा करूंगा। 2014 में जब ये सरकार बनी, क्योंकि बीजेपी के एरिक्सन मैनिफेस्टो में था, ये जब शिक्षा का मुद्दा कई बार पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टोज में बहुत पीछे रहती हैं, लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, घोषित की जाएगी। 2015 में स्मृति ईरानी जी जब मंत्री थी तो TSR सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। मई 2016 में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, लेकिन बहुत सारे बातें थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे या वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। जब उस समय भी जो ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए गए थे वो थे टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, एड्रेसिंग द गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे TSR सुब्रमण्यम जी की जो कमेटी थी उसने अपना काम किया था, लेकिन ये रिपोर्ट, जैसा मैं कह रहा था, कि इम्प्लीमेंट नहीं। उसके बाद इसरो के फॉर्मर डायरेक्टर रहे के कस्तूरी रंगन जी के अध्यक्षता में एक नई कमेटी गठित की गई जिसने पूरे इस NEP का ड्राफ्ट तैयार किया। बहुत बड़े चेंजेस और क्रांतिकारी चेंजेस, मैं भी उनके डिटेल्स पे जाऊंगा, इस ड्राफ्ट में हैं। बहुत सारी चीजें अब तक आपसे बहुत लोगों ने चर्चा भी की। उसके पहले मैं थोड़ा सा इतिहास से आपकी यात्रा शुरू कराना चाहता हूं। 1813 में अंग्रेजी राज के समय एक चार्टर आता है जिसमें पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान की बात की जाती है, और ये विवाद वहां खड़ा होता है कि ये अनुदान किसको मिले। 2 तरह के समूह तैयार हो जाते हैं, इंग्लिसिस्ट का, आंग्लवादियों का, जो कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए, और दूसरा एक प्राच्यवादियों का, जो कहते हैं कि भारत की जो मूल शिक्षा व्यवस्था है, मूल खाती है शैक्षिक परंपरा की, उसको प्रमोट करने की बात होनी चाहिए। अंग्रेज सरकार 1819 में टॉमस मुनरो के नेतृत्व में एक भारत में शिक्षा के सर्वेक्षण की तैयारी कराती है, शिक्षा का सर्वेक्षण कराना प्रारंभ कराती है। और आपको आश्चर्य होगा, पक्का डॉक्यूमेंटेशन अंग्रेज करते थे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 1819 में उसको ये दायित्व मिलता है, 1823 में अपनी वो रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट चौंकाने वाले, वो हटा दिया जाता है यहाँ से। अभी उसको कुछ वर्ष पहले देहरादून के सिद्ध फाउंडेशन ने ब्रिटिश आर्काइव से लेके उसको पब्लिश किया है, इसलिए बहुत सारे अभी हम लोगों के नॉलेज में या हमारी
जानकारी में मुझे लगता है कि चीजें नहीं हैं, लेकिन वो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। उस शिक्षा के सर्वेक्षण में जहां 6 लाख गांवों का सर्वेक्षण होता है, मंदिरों पे, मदरसों पे, जो मस्जिदों के साथ जुड़े हुए होते थे, वहां जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी, इस कारण लगभग 100% लिटरेसी की बात वो रिपोर्ट करती और लगभग 76% को वो एजुकेटेड कहती। लगभग 1.1 लाख हायर एजुकेशन के छोटे छोटे सेंटर्स की बात वो रिपोर्ट करती। ये आश्चर्यजनक है। उसके बाद जो ब्रिटिश नीतियां लगातार बननी तय होती हैं, 12 साल मैकाले लेता है। अभी प्रोफेसर एडीएम वाजपेयी साहब कह रहे थे कि मैकाले का नाम ना भी लेना चाहे तो आ जाता है, स्वाभाविक भी है। वो एक व्यक्ति ऐसा था जिसके 12 वर्ष के उस श्रम ने, उसकी वैचारिकी ने ऐसा प्रभावित किया हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था को कि आज लगभग 200 साल का समय बीतने वाला है, 185 वर्ष का लगभग समय होने वाला है, लेकिन अभी हम उसके चंगुल से, उसके दायरे से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जबकि उसकी मंशा एकदम स्पष्ट थी, इसमें कहीं किसी को कोई संशय नहीं। वो चाहता था कि इस देश में ऐसे अंग्रेज तैयार हों जो दिखने में तो भारतीय हों लेकिन मन से अंग्रेज हो। और आज तक हमारे जो दिमाग है, जो हमारे मस्तिष्क है, जो हमारे ब्रेन है, वो डीकोलोनाइज नहीं हो पाए। वो अभी तक उनका विऔपनिवेशीकरण नहीं हो पाया है। आज तक हम कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड की जो एक संकल्पना है, उससे अभी तक गुजर रहे हैं। आज तक हम उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं एक छोटी सी घटना हुई, उसका जिक्र करूं आपसे। पिछले वर्ष एक स्वनामधन्य विश्वविद्यालय है दिल्ली में, उसकी एक मीटिंग में हम लोग शामिल थे। नाम बताने की जरूरत नहीं है। वहां इस उम्मीद के साथ एक बहुत बड़ा ग्रांट भारत सरकार करती है कि वहां से एक राष्ट्रभक्त नागरिकों का संच निकलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वहां भारत तेरे टुकड़े होंगे की भी बात होती। वहां के एक प्रोफेसर, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन उस मीटिंग में बड़े सरकास्टिक तरीके से वो कहते हैं, कुछ बात हो रही थी प्राचीन वैभव, प्राचीन गौरव की भारत के, और वो कहते हैं कि डू यू पीपल रियली बिलीव दैट देयर वाज समथिंग गुड और रिमार्केबल इन एंशिएंट इंडिया। उसी अंदाज में जब 30 सेकंड के गैप के बाद उनसे पूछा गया कि प्रोफेसर, डू यू रियली बिलीव दैट यू हैव रेड समथिंग ओरिजिनल ऑन एंशिएंट इंडिया? हैव यू रेड एनी वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, और जो आपने पढ़ा है जरा प्लीज बताइए तो हम लोग आपसे आगे बात करें। He was on the back foot। इस बात के बाद तो ये जो एक स्थिति बना के रखी गई है या बनाई गई, ये देखिए 200 साल की जो अंग्रेजों की गुलामी रही और उसके पहले की भी जो हमारी स्थिति रही, उसने बहुत कुछ परिवर्तित किया, बहुत कुछ परिवर्तित किया। इसलिए हमको इन स्थितियों को बहुत ठीक से समझते हुए आज जो अभी 2020 में लगभग 34 साल, और अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें 1992 में आया, तो भी लगभग 28 साल के बाद जो एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके बिंदुओं को समझते हुए उसकी जो स्थितियां हैं, उसके पीछे जो विचार हैं, उसकी जो वैचारिकी है, उसका जो दर्शन है, उसका जो उद्देश्य है, उसको ठीक से निर्धारित करना होगा, समझना होगा। एक चीज और मैं कहूं कि 1894 के फिलिप हर्टोग कमेटी से लेकर 1966 से 66 के बीच जो डॉक्टर डीएस कोठारी के निर्देशन में जो कमेटी बनी थी, जिसके आधार पर, जिस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 1968 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई मेरे देश में, वहां तक 1894 के ब्रिटिशर्स द्वारा नियुक्त फिलिप हर्टोग कमेटी से लेकर और 1966 तक कोई भी जो ड्राफ्ट है, कोई भी जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ब्रिटिशर्स का डॉक्यूमेंट हो या हमारा हो, उसमें किसी में भी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं बताया। किसी में भी शिक्षा का उद्देश्य नौकरी नहीं बताया। ऐसा पहली बार हुआ कि 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, प्रोफेसर यशपाल जिसके अध्यक्ष थे, यद्यप उसमें सैम पित्रोदा जी का बड़ा योगदान था, मुझे लगता है कि ज्यादा प्रभावी थे, ये कहना गलत नहीं होगा, और सैम पित्रोदा जी के विचार से हम लोग इधर परिचित हो चुके हैं। उसमें पहली बार ये स्पष्टता के साथ ये बनाया गया कि शिक्षा को रोजगारोन्मुख होना चाहिए, या एम्प्लॉयबिलिटी उसका लक्ष्य होना चाहिए। एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स का निर्माण, स्टूडेंट्स में एम्प्लॉयबिलिटी हो, ये उसका लक्ष्य होना चाहिए। और शायद फिर 1992 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, और शायद
इस बात के पीछे भी इसके पीछे भी यही भाव रहा जो मंत्रालय का नाम परिवर्तित हुआ, जिसे फिर हमने पुराने ढर्रे पे और पुराने मूल रूप में लिया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो बात आई। वास्तव में जो मनुष्य के निर्माण करने वाली शिक्षा थी, ह्यूमन बीइंग के निर्माण करने वाली शिक्षा की अवधारणा पुराने समय से, प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी। सा विद्या या विमुक्तये का कंसेप्ट था कि विद्या वो जो हमें मुक्त कराए, जो हमें आजाद कर दे, जो हमें स्वतंत्र कर दे, जो हमारी वैचारिकी को स्वतंत्र कर दे, जो हमारी सोच को स्वतंत्र कर दे, वो बदलकर हमने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना दे दी या कर ली जाने अनजाने, और उसके बाद भी उसके कोई परिणाम रहे, मैं आगे आऊंगा अभी अपनी बातचीत में उस पर, कि हमने ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के लिए जो एक मैनफोर्स पैदा करने वाला, मनुष्य बल पैदा करने वाला, मनुष्य के निर्माण करने वाली शिक्षा के बजाय एक मनुष्य बल पैदा करने वाला हमने कंसेप्ट जाने अनजाने या बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से भी संभवतः दे दिया। इसके विपरीत जो भारतीय वैचारिकी है, भारतीय मनीषा है, भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन धारा है, वो मनुष्य को सोर्स मानती है, वो मनुष्य को स्रोत मानती है। इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को देखेंगे तो ये वैचारिकी बहुत हद तक स्पष्ट हो जाती है। और कई बार तो मुझे लगता है कि जो काम मैकाले नहीं कर सका, उसे 1980 के दशक में आकर हमारी अपनी सत्ता ने, हमारे अपने सत्ताधीशों ने कर दी। जो काम मैकाले का लक्ष्य खैर स्पष्ट था, लेकिन उसे शायद हम इंप्लीमेंट कर गए। यानी मनुष्य निर्माण के शिक्षा के स्थान पर मैनफोर्स का निर्माण करने वाली शिक्षा। कोठारी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में एक एजुकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा, और उसकी प्रस्तावना में कोठारी कमीशन ने बहुत स्पष्टता के साथ डीएस कोठारी ने अपनी जो 1968 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, जिस रिपोर्ट के आधार पर 1966 की, उसकी प्रस्तावना में बहुत स्पष्टता के साथ लिखा था, डीलिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब। तभी शिक्षा ज्ञानवर्धन करने वाली होगी और एक नॉलेज सोसाइटी का निर्माण होगा, एक ज्ञानवान समाज का निर्माण होगा। इसीलिए जब डॉक्टर मासेलकर जी को जब नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस कमीशन को, इस काउंसिल को, इस कमीशन को अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो रोजगार नहीं है, बल्कि एक ज्ञान युक्त समाज की स्थापना करना उसका उद्देश्य है। जब से हमने ये रख दिया, अब मैं अभी इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कम से कम हायर एजुकेशन से रिलेटेड 4-5 मुख्य बिंदुओं को अपनी बातचीत में कवर करूंगा, लेकिन जब से हमने इसको अर्थकरी बना दिया, जब से हमने इसको इम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कर दिया, तब से गिरावट और अधिक होने लगी। आप पिछले 10-12 साल के दुनिया के स्तर की एजेंसीज की जो भारत की शिक्षा पर रिपोर्ट्स हैं, उनको उठा के देख लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाए। 2013-14, 14-15 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है, आप उस रिपोर्ट से गुजरिए। वर्ल्ड बैंक की वो रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल 1.1 करोड़ ग्रेजुएट्स निकलते हैं। भारत में हर साल 1.1 करोड़ स्नातक ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन इसमें से 90% से अधिक किसी काम लायक नहीं। उनसे आप कुछ नहीं करा सकते, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, कोई काम नहीं करा सकते। यहां तक कि जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, उसमें भी एक बड़ी संख्या इसी तरह की निकल रही है। ये रिपोर्ट्स हैं पिछले 10-12 साल में बहुत सारी एजेंसीज की, मैंने केवल एक वर्ल्ड बैंक का उदाहरण आपको दिया। नई शिक्षा नीति में जो 29 जुलाई 2020 को अप्रूव हुई, उसमें कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम, जो 9 मेंबर उसमें थे, उन्होंने इस पर बहुत श्रम किया है और इस दृष्टि से क्रांतिकारी काम किया है। दूसरे आपको मैं एक बताऊं कि ये शिक्षा नीति
पूरे देश के प्रतिभाग से, पूरे देश के पार्टिसिपेशन से बनी है। कुछ मीटिंग्स में हम लोगों का भी जाना हुआ, हमसे भी विचार मांगे गए, इसलिए मैं उस चीज को उस तरीके से भी ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जितनी बड़ी संख्या में लोगों से इसके लिए परामर्श मांगा गया, इसमें पार्टिसिपेशन उनका कराया गया, दुनिया के लगभग 115-120 देश, उससे कम जनसंख्या वाले देश हैं जितने लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ है। पंचायत स्तर तक के लोगों के विचारों को इसमें जगह देने का प्रयास हुआ है। कम से कम उनके विचार लिए गए ताकि सही स्थिति निकल के आए, सही स्थिति की जानकारी हो। दुनिया की अब तक की कोई भी पॉलिसी अब तक रिकॉर्ड पे इतने बड़े पार्टिसिपेशन के साथ नहीं बनाई गई है। स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन दोनों ही स्तरों पे मैं फोकस करूंगा। अगली जो बातचीत अभी मेरी होगी वो हायर एजुकेशन पे ही, लेकिन स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन दोनों में ही क्रांतिकारी परिवर्तन करने की बात इस शिक्षा व्यवस्था ने की। यद्यपि एक चीज सावधानी बरतनी हो, कोठारी कमीशन से गुजरिए। मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ICHR आने से पहले कई वर्ष एक कॉलेज के प्राचार्य के दायित्व पे भी था। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था यद्यपि। उसमें B.Ed का भी पाठ्यक्रम था। तो मैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो पेपर है वो सामान्यतः मैं पढ़ाया करता था, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत माइन्यूटली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का भी मौका मिला, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग के विद्यार्थियों से संवाद करने का लगातार मौका मिलता रहा। कोठारी कमीशन डॉक्टर शिवांगी जी प्लीज देखिए, ये कई बार, 2 बार हो चुका मेरे ख्याल से। द होस्ट म्यूटेड यू। आगे बोलना है मुझे? Yes, sir. By mistakenly, it was just. It happened second time. Yeah. Sorry, sir. Sorry for disturbance. फ्लो टूटता है ना, ठीक है। Right. ध्यान भी नहीं आ रहा मैं कहा था, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन दोनों ही स्तरों पर क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर ये नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। लेकिन हमको इस बात पे सावधानी के साथ विचार करना होगा, इस बात पे सावधानी के साथ सोचना होगा कि कोठारी कमीशन, डॉक्टर DS कोठारी आयोग ने जो रिकमेंडेशंस दिए थे वो भी मैं तो यही कहता हूं कि दे वर इक्वली गुड। वो भी इसी तरह की, उसकी रिपोर्ट भी इससे कमजोर नहीं थी। कम से कम उन परिस्थितियों में 60 के दशक में जाकर एक बार देखें, क्योंकि कई बार सामयिक परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती हैं, हर समय की एक डिमांड होती है। लेकिन आप 60 के दशक में जाकर देखें तो वो बहुत बेहतर आपको रिपोर्ट लगेगी, अगर आप उसके प्रोविजंस को ठीक से पढ़ें देखें तो। लेकिन उस समय के राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, और सबसे बड़ी बात हमारी जो फ्रेटर्निटी है, जो हमारे शिक्षक वृंद हैं, अभी भी ये कहने में आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि कई बार गुरुजन वृंद परिश्रम नहीं करना चाहते। यूनिवर्सिटी टीचर्स, हायर एजुकेशन टीचर्स, या शायद नीचे के लेवल पे भी यही हाल है, जो रोट एजुकेशन है उसको बढ़ावा देते हैं, रेक्टिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन उस तरह से प्रमोट नहीं होता। कई बार हमारे जो टीचर्स हैं वो 70 के दशक में, 80 के दशक में, जब उन्होंने वो कक्षा पास की थी, उस समय के बनाए नोट से पढ़ाना प्रेफर करते हैं। जो नए रिसर्चेस हुए उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको नए परिवर्तनों को लेने में मुझे लगता है थोड़ी समस्या होती है, शायद इसलिए क्योंकि टीचर्स ने उसको इम्प्लीमेंट करने में रुचि नहीं दिखाई। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, और टीचर्स ने उसको इम्प्लीमेंट करने में जो रुचि नहीं दिखाई, इस कारण से वो व्यवस्था या वो पूरी स्थिति फेल हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन इस बार शासन की मंशा एकदम स्पष्ट है, पूरी तरह से। कम से कम राजनीतिक इच्छा शक्ति के स्तर पे मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन ऐसा मेरा मानना है चीजों को ऑब्जर्व करते हुए, चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद, कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के स्तर पर कहीं कोई समस्या नहीं आने जा रही है। मैं एक उदाहरण से आपको इस बात को स्पष्ट करूं अपनी, क्यों मैं इस दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। 29 जुलाई को इसका ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है, 29 जुलाई 2020 को। फरवरी में जो बजट घोषित हुआ उसमें NRF की बात, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, संभवतः अभी मुझे डॉक्टर शिवांगी जी बता रही थी कि जो ADN वाजपेयी साहब का भाषण था, व्याख्यान था, वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पे ही केंद्रित था, इसलिए उन्होंने काफी बात आपसे की होगी।
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसकी बात 29 जुलाई को 2020 को एनईपी में अप्रूव हुई है, उसके लिए फरवरी में जो बजट यहाँ प्रेषित किया गया, बजट बनाया गया, उस बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। मैं एक रिसर्च काउंसिल में ही ऐसी 6 रिसर्च काउंसिल देश में हैं सरकार के स्तर पे एपेक्स बॉडीज के रूप में, 3 ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में, जिसको हम ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, 2 इसमें से आपके साथ इस FDP में प्रतिभाग कर रही हैं, ICHR एंड ICPR, और 3 और जो काउंसिल्स हैं जो साइंस, मेडिकल साइंस और को कवर करती हैं, वो हैं ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। उनको मिलाकर एक 3 साल से पहले से नीति आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी है कि उनका मर्जर कर दिया जाए, ताकि भारत में इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा मिले। जो एक मॉडल भी हमारे साथ हमारा सहभागी है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है हमारा ICHR का UKRI के साथ। अभी उन्होंने, पहले उनका नाम UKRC हुआ करता था, यूनाइटेड किंगडम रिसर्च काउंसिल्स, अभी वो UKRI, यूनाइटेड किंगडम रिसर्च एंड इनोवेशंस नाम से, और उसमें वहां के जितनी काउंसिल्स हैं वो एक बिगर अम्ब्रेला के अंदर है। उनकी एक काउंसिल उसके अंदर है HRC, जिसके साथ हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल, इसी तरह से साइंस की, मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग की। और what they do, what their argument is that they can promote in a better way interdisciplinary research. तो हम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च को बेटर तरीके से प्रमोट कर सकें, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है, और बेहतर तरीके से हम आगे स्टेप आउट करें, ये सरकार की मंशा है। इसलिए मैं वही कह रहा था कि केवल एक इंस्टेंस में बताता हूं कि सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि जो ड्राफ्ट 29 जुलाई 2020 को अप्रूव होता है, उसके लिए उसके एक कम से कम प्रोविजन पे आपके बजट में प्रावधान कर दिया गया 200 करोड़। 4-5 बिंदुओं पे मैं अब अपनी बातचीत को केंद्रित करता हूं हायर एजुकेशन से रिलेटेड। पहली जो बात हायर एजुकेशन से रिलेटेड इस पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई है, वो है स्वायत्तता, ग्रेडेड ऑटोनॉमी। लेकिन ऑटोनॉमी या स्वायत्तता, ग्रेडेड, वो भी उसके लिए शब्द यूज किया गया कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी। जैसे जैसे हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, भारत में इस समय 44,000 से अधिक कॉलेजेस हैं, 1,000 के आसपास विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे जैसे गुणवत्ता बढ़ती जाएगी इंस्टीट्यूशंस की, वैसे वैसे उनकी स्वायत्तता बढ़ती जाएगी। यद्यपि स्वायत्तता से दायित्व की भी वृद्धि होती है। अभी तो हम बहुत खुश हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अधीन कानपुर विश्वविद्यालय है, जिसमें शायद मुझे लगता है कि 1,500 से ज्यादा कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। कई बार उनके वर्कलोड को सोच के बहुत मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे वो मैनेज करते हैं एक विश्वविद्यालय से 1500-1600 कॉलेजेस को, एफिलिएटेड कॉलेजेस को। और इसलिए शायद कहीं ना कहीं गिरावट की बात भी आती है, कहीं ना कहीं नकल माफियाओं को प्रश्रय मिलता है, बहुत सारा भ्रष्टाचार पनपता है और गिरावट की बात आती है। हम जब ग्रेडेड ऑटोनॉमी की ओर जाएंगे तो हमारी गुणवत्ता निश्चित रूप से हम बाध्य होंगे कि गुणवत्ता बढ़ाई जाए, और नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको झेलने पड़ेंगे। पिछले केब में भी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन होता है, 1-2 मीटिंग्स में मेरा जाना हुआ, और मुझे लगा कि सरकार की मंशा इस पे एकदम साफ है कि गुणवत्ता के आधार पर ही, मुझे लगता है कि जावड़ेकर साहब मंत्री थे, उन्होंने एक बात कही थी, खूब मीडिया में चर्चा में आया था कि अब डाकू और साधु एक तराजू पे नहीं तोले जाएंगे। यही उन्होंने लाइन यूज की थी केप की मीटिंग में। इसलिए जो अच्छा काम करेंगे उनको उस हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। यद्यपि इसका मैकेनिज्म अभी तय होना है, अभी ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, अभी मैकेनिज्म इन्हीं तरह की चर्चाओं से निकल के आएगा, पूरे देश से निकल के आएगा, और मैकेनिज्म अभी आगे तय होना। टीचर्स की और टीचिंग की क्वालिटी पर ये ग्रेडेड इकोनॉमी की बात निर्भर करेगी। अभी इस ड्राफ्ट में नेशनल एजुकेशन कमीशन की बात तो अभी नहीं की गई है, लेकिन एक बड़ा जो एक नई बात या बड़ी बात इसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड की गई, वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्माण की बात की गई, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसका तैयार किया गया।
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर सारी चीजें उसमें कवर होंगी, ऐसा एक प्रावधान बनाया गया है। और उसमें 4 वर्टिकल्स उसके तैयार किए गए हैं, 4 वर्टिकल्स उसके बनाए की बात की गई है। NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, GEC, जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी, वो रेगुलेशन का काम देखेगी, जो 4 वर्टिकल्स इसके तैयार किए गए हैं। GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो स्टैंडर्ड सेटिंग करेगी। HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो ग्रांट्स का काम देखेगी। और NAC, नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, जो एक्रेडिशन का काम देखेगी। ये इसके 4 वर्टिकल्स तय किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। अभी जो बाकी बहुत सारी और जो काउंसिल्स हैं, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह के बहुत सारे काउंसिल्स को लेके जो अभी एक विचार निकल के आ रहा है, वो ये कि वो PSSB के रूप में, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के रूप में उनको तब्दील करने का प्रयास किया। अभी केवल पूरी तरह से PSSB के रूप में एक जो बॉडी दिखती है हमें, वो ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसमें PSSB के रूप में, और आप उसकी क्वालिटी एक बार देख लीजिए, आप उसकी क्वालिटी एक बार देखिए कि पूरी तरह से लर्निंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी पे वो काम करती है, पूरी तरह से लर्निंग सेंट्रिक मेथोडोलॉजी पे काम करती है। उसके जो एग्जाम्स होते हैं, उसके स्टैंडर्ड को देख लीजिए, और इसलिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वहां से निकलते हैं, आप उसका रिजल्ट देख लीजिए। अब तो इधर रिजल्ट थोड़ा बढ़ा भी है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की क्वालिटी हो सकता है थोड़ी बढ़ी हो। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, उन्होंने थोड़ा जो उनका जो बहुत टफ एग्जामिनेशन पैटर्न था उसको थोड़ा हल्का किया है। मुझे अकाउंटेंसी की बहुत समझ नहीं है, लेकिन ICAI से निकलने वाले जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दुनिया भर में उनकी योग्यता प्रमाणित है। 2-3% रिजल्ट आता था, कभी कभी 7-8% तक रिजल्ट गया। आप 3 बार 4 बार वो एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को लेने का स्वप्न कहीं ना कहीं ये एजुकेशन पॉलिसी देखती है। एक कंफ्यूजन भी है कि 3 तरह के इंस्टीट्यूट्स हो जाएंगे, एक टीचिंग इंस्टीट्यूट होगा, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, और एक होगा टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा कंबाइंड। कौन सा होगा, कौन इसका निर्धारण करेगा, कौन इसको तय करेगा, कैसे इसकी चीजें आगे बढ़ेंगी, इसको लेके थोड़ा भ्रम भी जानबूझ के भी फैलाया जा रहा है। लेकिन अभी मैं फिर वही कह रहा हूं कि अभी इस पर मैकेनिज्म तो तय होना है। विचार बहुत स्पष्टता के साथ आ गए हैं, और निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि क्रांतिकारी विचार आए, वास्तव में भारत को विश्वगुरु बनाने वाले विचार आए हैं। रिसर्च को पिछले दिनों ऐसा हुआ कि रिसर्च को मैंडेटरी बना दिया गया। यद्यपि इसमें इस डॉक्यूमेंट में ये भी बात निकल के आ रही है कि वर्कलोड की बात UGC एक करती है। अब टीचर्स के लिए वर्कलोड कहना कि इतने आवर्स का पर वीक वर्कलोड निर्धारित करना, ये शब्द ही बहुत व्यथित करता है, कम से कम मेरे जैसे टीचर को या एडमिनिस्ट्रेटर को, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर को। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते थे, कई बार मैं ये कहता हूँ, या आज भी जब क्लासेस लेते हैं, मैं कहता हूँ मेरे लिए आनंद की बात होती है, मेरे लिए आनंद का विषय होता है। और 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितने देर की क्लास ले लीजिए, वो कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो मुझे काम लगता ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूं। ऐसे में वर्कलोड कहना, तो जो वास्तव में मूलतः शिक्षक है, समस्या यह है कि अंदर से वो ठेकेदार है और शिक्षक के रूप में है, अंदर से वो पुलिस वाला है और शिक्षक के रूप में है, तो समस्या होगी, उसके लिए वो लोड होगा। लेकिन जो मूल रूप से शिक्षक है, उसके लिए वर्कलोड हो ही नहीं सकता, लोड तो हो ही नहीं सकता। इसलिए शब्दों का चयन भी कई बार बहुत, जिसको कहते हैं, बहुत सोच समझ कर किया जाना आवश्यक होता है। दूसरे, इधर रिसर्च को लेके जो अभी मैंडेटरी किया गया, उसको PhD होना जरूरी, इसलिए बाढ़ आई। जो अभी कुछ वर्ष पहले तक 15,000 16,000 PhDs देश में हो रही थी, वो 30,000 से ऊपर उसकी संख्या चली गई प्रतिवर्ष। क्वांटिटेटिवली तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटेटिवली हमारी गिरावट को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में वो उत्कृष्टता हमें दिखाई दे रही है क्या।
और अगर नहीं तो उस पर बहुत ठीक से चिंतन मंथन करना पड़ेगा, करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उसमें पेटेंट्स कितने हुए, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में जो रिसर्चेस हुए, उनसे जो प्रिंसिपल्स बने, उनसे जो सिद्धांत बने, वो जनमानस तक, जनसामान्य तक पहुंचे क्या? क्या उससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ क्या? इंडस्ट्रियल रिसर्च या साइंटिफिक रिसर्च या टेक्नोलॉजी में जो रिसर्चेस हुए, क्या उसने यहाँ के लोगों को प्रभावित किया? आज हम वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। सरकार या जो हमारे सत्ताधीश हैं, उनकी मंशा बड़ी स्पष्ट है कि हम वास्तव में देश को उस गौरव की ओर ले जाना चाहते हैं जो वास्तव में जिस गौरव पे हमारा देश था। दुनिया को पहला विश्वविद्यालय हमने दिया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। आज जिन बहुत सारी चीजों पर पाश्चात्य जगत अपना एक अधिकार समझता है, आप वास्तव में इतिहास को अगर देखिए, वास्तव में सिंहावलोकन कीजिए, उसका सही मानसिकता के साथ, सही नजरिए के साथ देखिए, तो हमें दिखाई देगा दुनिया के सारे भाषाओं की जननी अगर कोई है तो वो संस्कृत। फादर ऑफ मेडिसिन चरक है, सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी हैं, जिनको हम शायद उतना रिगार्ड नहीं दे सके, हम शायद उस तरह का सम्मान नहीं दे सके। आज ऑस्ट्रेलिया के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में फादर ऑफ सर्जरी कहते हुए उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। सुश्रुत संहिता में 300 तरह के ऑपरेशंस का जिक्र है। पहली बार अणु परमाणु की परिभाषा किसे ने दी तो महर्षि कणाद है। जिस मार्शल आर्ट पे आज चीन और जापान अपना एकाधिकार समझता है, बोधिवर्मा उसको यहां से लेके गया था। इसलिए इन बातों को इस तरह के आत्मगौरव के साथ जब हम कोई बात सोचते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने कमियों को नहीं सोचना, हमें केवल उजला पक्ष देखना है, ऐसा नहीं है। समय के साथ, समय के प्रवाह में यदि हमारी जो कमियां आई उनको भी दूर करने का किस तरह से हमें प्रयास करना होगा, ये निश्चित रूप से हमको सोचना होगा। इसलिए जो यूजीसी के ये वर्कलोड की मेथोडोलॉजी है, वो कम से कम मेरे जैसा शिक्षक या मेरे जैसा बहुत तुच्छ सा जो शैक्षिक क्षेत्र का प्रशासक है, वो उसको नहीं स्वीकार कर पाता, नहीं मान पाता। दूसरे टीचिंग ओरिएंटेड और रिसर्च ओरिएंटेड, इस तरह जो दो तरह के लोग हैं, उनका वास्तव में वही उपयोग हो, ये इस पूरे डॉक्यूमेंट से निकल के कहीं ना कहीं बात आती है कि हम लैब में रहने वाले व्यक्ति हैं, हमारा पूरा ओरिएंटेशन रिसर्च ओरिएंटेड है, लेकिन हम बाध्य होते हैं कि हम क्लास में भी अपना योगदान दें। दूसरे, हमको टीचिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम बाध्य हैं कि हम रिसर्च करें। मैं ये नहीं कहता कि उनको रिसर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें बाध्य करके वो कराया जाने की व्यवस्था हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे तरीके अपनाए जाने चाहिए उनको, उनके योग्यता के, उनकी कुशलता के निर्धारण के लिए। दूसरी बात, एक बात तो ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी की, जो स्वायत्तता की बात आई है, और ये बहुत हद तक उच्च शिक्षा का मार्ग बहुत सही दिशा में प्रशस्त करने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी है जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स कंटेंट की बात आई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जीवन भर वो पढ़ा जो वास्तव में हम पढ़ना चाहते ही नहीं थे या जिसके लिए हम बने ही नहीं थे। ईश्वर ने जो योग्यता या जो क्षमता हमको नहीं दी थी। हम आर्ट्स की ओर इसलिए नहीं गए क्योंकि समाज में या हमारे कम से कम उस खास तबके में आर्ट्स पढ़ने को बड़ा कमजोर माना जाता है, या ये माना जाता है कि कुछ नहीं कर सक रहा है, इसलिए वो आर्ट्स का स्टूडेंट है। ऐसे में हम बाध्य होकर साइंस ले लेते हैं जिसके लिए हम बने नहीं, जो हमारा मूल नहीं है। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं, और बहुत स्ट्रिक्टली जो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इस तरह के टेक्नोलॉजी, इस तरह के जो डिवीजन किए गए, उसको इस पूरे डॉक्यूमेंट ने, इस पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तोड़ने का काम किया। अभी तक हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से जूझ रहे थे, और वो तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई जब तक हमारे शिक्षकों ने उसको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। अब हम जो ये एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का या एजुकेशन का कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इसको जो हमने कंपार्टमेंट्स में बांट दिया और स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट्स में बांट दिया, उसको तोड़कर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात बहुत स्पष्टता के साथ की है। इंजीनियरिंग के साथ लिटरेचर पढ़ सकते, बहुत सारे साहित्यकार इस देश में इस तरह के इस समय हैं जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे, उसके बाद उन्होंने वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए समय से अपने को, फिर वो मैनेजमेंट की ओर मुड़ गए, फिर किसी
बहुत बड़े बैंक के साथ काम किया, इंजीनियरिंग की, फिर मैनेजमेंट की ओर गए, फिर बैंक के साथ काम किया, और बाद में उन्होंने एक्सप्लोर किया कि भाई साहब वो तो किसी और काम के लिए पैदा हुए, वो तो साहित्य रचना के लिए पैदा हुए, उनकी रुचि तो लिटरेचर में। ये जब 6वीं से 10वीं के बीच विद्यार्थी समझ लेगा और उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। पहले केमिस्ट्री, और अभी एक मैडम केमिस्ट्री की थी इसलिए मैं केमिस्ट्री का उदाहरण ले रहा हूं, और मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं इसलिए दोनों को जोड़ दे रहा हूं कि केमिस्ट्री और हिस्ट्री में हमारे पास विकल्प होता था कि हम कौन सा लें, कौन सा पढ़ें। आज हम दोनों ले सकते हैं, आज हम दोनों पढ़ सकते हैं। दूसरे, आप कभी गंभीरता से इस बात पे विचार कीजिएगा कि केवल जो अभी कुछ समय पहले पूरी दुनिया में विमर्श शुरू हुआ था, मेरे 1-2 लेक्चर्स भी हुए, कई सारे जो HRDC के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जो उनकी 21 दिन की जो कार्यशालाएं हुआ करती थी, कई यूनिवर्सिटीज में इस पर मेरी बातचीत हुई कि जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज है, पूरे दुनिया में विमर्श आया कि उसको कम करते हुए खत्म कर देना चाहिए। बहुत जगह आवश्यकता नहीं है इसकी, क्या जरूरत है इसकी, क्या मशीन पैदा करना है हमें? केवल विज्ञान तो हमें, विज्ञान के सिद्धांत हमारे अंदर ये इनकलकेट नहीं कर पाते। हमें परमाणु का सिद्धांत तो हम जान सकते हैं, लेकिन उस परमाणु सिद्धांत से हम परमाणु ऊर्जा बनाएंगे या परमाणु बम बनाएंगे, हम एटॉमिक एनर्जी से दुनिया का कल्याण करेंगे या एटॉमिक बम बनाएंगे, ये निर्धारण ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस करता है। ये निर्धारण साहित्य करता है, ये निर्धारण इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करता है, ये निर्धारण समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। इसलिए इतना बड़ा ये कदम है, दुनिया के कुछ देश इसको पहले अपना चुके हैं, इतना बड़ा ये कदम है जिसके जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तो आपको ये अंतर समझ में आएगा। आज कई बार ये, मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा भांजा इस समय IIT दिल्ली में है, फाइनल ईयर में है, और IIT दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सारे रिकॉर्ड्स उसने अब तक के ध्वस्त किए हैं, इतना अच्छा विद्यार्थी है। लेकिन उससे मेरी जब बात हो रही थी और मैं भारत के प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और क्योंकि मुझे लगा कि अब ये छोड़ के इस देश को हो सकता है अगले वर्ष जब अमेरिका में जाएगा और उसे भारत के बारे में बात करनी होगी, तो पता नहीं इसके पास कोई जानकारी है कि नहीं, और दुर्भाग्य से अब तक नहीं है उसके पास कोई जानकारी। वो भारत के साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मूल हमारी साइंस टेक्नोलॉजी, वो भी शायद उसी तरह से बात करे जैसा वो JNU के, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहता था, फिर भी प्रोफेसर का नाम आ गया, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था, जिस तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कहा था कि डू यू पीपल रियली बिलीव दैट देयर वाज समथिंग गुड और रिमार्केबल इन सेलिंग? अरे नहीं था तो मेहरौली का दूसरा स्तंभ दुनिया में नहीं बन सका, जिसमें 1700 साल तक जंग न लगे। मार्को पोलो लिखता है अपने यात्रा संस्मरण में कि इस देश में 1.25 लाख मेटलर्जिकल फाउंड्रीज थी, और इस तरह के बहुत सारे, आप जिस भी, मैं उधर जाऊंगा तो पूरा एक सेपरेट लेक्चर चाहिए उसके लिए, लेकिन उनका ज्ञान होना चाहिए उनको, और ये स्थिति उनका ज्ञान करेगी। अभी LOCF का जिक्र, अभी जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर थे जो मेरा परिचय दे रहे थे, UGC ने एक LOCF का निर्माण किया है, लर्निंग आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें हम पूरे देश के विश्वविद्यालयों के लिए क्यूरिकुलम बना रहे हैं। और सौभाग्य से जो उसका पहला पेपर है उसको, और एकदम नया पेपर है, उसको बनाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैंने वो पेपर अपनी पूरी क्षमता, जो सीमित बुद्धि क्षमता है, उस हिसाब से उसको बनाया है। उसका नाम दिया है द आइडिया ऑफ भारत, भारत बोध, द आइडिया ऑफ भारत। और उसमें पूरी एक पेपर इस तरह का, और मुझे लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से बातचीत करते समय, मैंने जब उनसे उस पर चर्चा की थोड़ी एक बैठक में, तो हमें लगा कि उसको किसी भी डिसिप्लिन के लिए लगा देना चाहिए, एक पेपर के रूप में पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को अपने देश के बारे में कम से कम इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो लज्जित रहेंगे, वो हमेशा अपने को दोयम महसूस करेंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि डीकोलोनाइज उनका दिमाग नहीं हो पाएगा, और जब इस देश को छोड़ के वो अमेरिका और यूरोप में जाते हैं तो वास्तव में भारत क्या है उसको शायद वो ठीक से रख नहीं पाते, जो कि उनसे अपेक्षा होती है, क्योंकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं, हमारे लिए वो प्रकाश स्तंभ होते हैं। इसलिए उनकी शिक्षा व्यवस्था में ये लागू होना चाहिए। और दूसरा बड़ा पॉइंट हायर एजुकेशन में, एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं कहता हूं कि ये डाला गया है, ये रखा गया। इसके अलावा एक और बात
ये बहुत तथ्यात्मक बात है, बहुत सारे लोगों ने आपसे बात की होगी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल एग्जिट के ऑप्शंस दिए गए। मैं जैसा भी कह रहा था कि कुछ वर्ष मैं एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में 29 वर्ष की आयु में उस बड़े कॉलेज का जिसमें 4-5 फैकल्टीज थी, उसके प्रिंसिपल का, उसके प्राचार्य का दायित्व मुझे मिला। और मुझे कष्ट होता था, मुझे तकलीफ होती थी कि कोई बच्चा मेरे पास आता था कि सर मैं यहीं से बीए सेकेंड ईयर पास करके गया, मेरे परिवार की ये समस्याएं थी, या मैंने सेना ज्वाइन कर ली और अब मैं इसको कोर्स को कंप्लीट करना चाहता हूँ। और मैं उससे कहता था कि देखो बेटा 3 साल से अधिक हो चुका है, इसलिए तुम फर्स्ट ईयर से शुरू करो। ये कहते हुए मुझे कष्ट होता था कि 2 साल वो लगा के गया यहाँ, चाहे उसकी परिस्थितियां जो थी, उन परिस्थितियों ने उसको बाध्य किया जाने के लिए, और आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, अब तुम फर्स्ट ईयर से प्रारंभ करो। ये जो व्यवस्था है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने इसका हल दे दिया। अब 1 साल कोई करके जाएगा तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कोई करके जाएगा तो जो 4 ईयर का डिग्री कोर्स है उसमें, 2 साल कोई करके जाएगा तो उसे डिप्लोमा की उपाधि मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में पास कोर्स हो जाएगा उसका, और 4 साल में वो ऑनर्स की डिग्री उसे मिल जाएगी। जो सिंगल सब्जेक्ट या स्ट्रीम्स के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे, HEIs थी, उनके दिन अब लग जाएंगे। 10,000 से 44-45,000 जो कॉलेजेस का जिक्र मैं कर रहा हूं, उसमें 10,000 से ज्यादा बीएड कॉलेजेस हैं, 10,000 से ज्यादा बीएड कॉलेजेस हैं स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के रूप में। अब उनमें परिवर्तन होगा। और कई बार तो मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं कि कुछ स्कूल्स के लिए कई बार जब वॉक इन इंटरव्यूज के लिए मैं बैठता था, एक दिन का मैं अपना अनुभव बताता हूं कि 139 विद्यार्थी, सुबह 10 बजे हमने शुरू किया और शायद रात को 9 बजे 10 बजे तक 139 विद्यार्थी हमारे बोर्ड के सामने आए, जिसको मैं चेयर कर रहा था कुछ साल पहले। और बहुत मन मसोस के मुझे एक की नियुक्ति करनी। ये जो स्थिति है, कई बार जो रेजिड्यू है, जो सबसे कमजोर विद्यार्थी है, वो शिक्षा या शिक्षक बनने की ओर जा रहा है या जाता है। ये स्थिति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक को तो राष्ट्र का सबसे प्रज्ञावान नागरिक होना चाहिए। किसी भी देश की पीढ़ी, अगली पीढ़ी किस तरह की होगी, इसका निर्धारण वहां का शिक्षक करता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था करती है। इसलिए शिक्षक को तो जो ब्राइटेस्ट ब्रेन है, जो सबसे बेहतर ब्रेन है उस देश का, उसको उसमें जाना चाहिए। और आप उठा के देख लीजिए एक बार, इधर कुछ वर्षों में थोड़े परिवर्तन आए हैं। अभी BHU में 2-3 साल पहले, 2 साल पहले दीक्षांत था, उसमें ये बहुत सुखद मुझे लगा कि उसमें संख्या इस समय मुझे याद नहीं है, 49 या ऐसे कुछ जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उसमें 65 से 70% गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि दे वांट टू ज्वाइन हायर एजुकेशन एज टीचर्स। They don't want to go in administrative services, they don't want to go anywhere else, they want to join as higher education teachers. ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन अभी तक मैं वही कह रहा हूं कि रेजिड्यू आ रहा था कि SSC दिया, बैंक दिया, रेलवे दिया, और भी एग्जाम्स दिए, कुछ नहीं हुआ, तो साहब चलो बीएड कर लेते हैं। और बीएड भी कैसे कर लेते हैं? कुकुर मुत्तों की तरह से उगे हुए कॉलेजेस हैं साहब, जहां फीस दीजिए और फीस के ऊपर से कुछ और चढ़ावा चढ़ाइए, घर बैठे रहिए, आपको डिग्री मिल जाएगी। और ऐसे जब शिक्षक तैयार होंगे तो जाहिर है कि उससे देश और समाज का कितना कल्याण होना है, ये सहज आप सोच सकते हैं। इसलिए एक और जो बात इसने इसी क्रम में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, वो है मेरू की बात। अब वही मैं कह रहा था कि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस या जो सिंगल स्ट्रीम, सिंगल सब्जेक्ट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी जगह पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, जिसको मेरू कहा गया है। जो भारत की मूल शिक्षा व्यवस्था है, मैं आपको बताऊं, मैं उसके बहुत डिटेल्स में जाने का समय नहीं है, लेकिन एक दो बिंदु से केवल मैं संकेत करना चाहता हूं। आज जो ये परिवर्तन किए जा रहे हैं उन स्थितियों की ओर, नारद को एक बार विषाद होता है। ये छांदोग्य उपनिषद का एक विवरण है, छांदोग्य उपनिषद का, कि नारद को एक विषाद होता है, जब कष्ट होता है, उनको जब कुछ मानसिक समस्या होती है, तो वो अपने गुरु ऋषि सनत कुमार के पास जाते हैं। ऋषि सनत कुमार उनसे पूछते हैं
कि तुमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, और उस विवरण में आपको पूरे वेद वेदांग का पूरा विवरण मिल जाएगा, जो उस समय के पूरे का पूरा क्यूरिकुलम था उसकी जानकारी मिल जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो किसी वैद्य के पास नहीं जाते। ये जो शिक्षक और शिक्षार्थी का, विद्यार्थी और गुरु का जो संबंध था, ये बहुत अद्भुत है। राम को जब कष्ट होता है, राम को जब विषाद होता है, तो वो किसी वैद्य को नहीं खोजते, वो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे अपने विषाद की चर्चा करते हैं, और गुरु उनको बताते हैं उसका उपाय। योग पर लिखी हुई, शायद हम पतंजलि योग सूत्र को मानते हैं, लेकिन योग पर लिखी हुई पहली पुस्तक योग वासिष्ठ आती है, जो राम के विषाद को दूर करने के लिए वशिष्ठ उनको शिक्षा देते हैं। योग वासिष्ठ का सृजन होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पाश्चात्य चश्मे से अपने को देखते हैं, जब हम विदेशी चश्मे से अपने को देखते हैं, जब मार्क्स और मैक्स वेबर के चश्मे से अपने को देखते हैं, तो शायद हम अपने समाज का, अपने इतिहास का, अपनी संस्कृति का, अपनी शिक्षा व्यवस्था का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। यही दिक्कत है। मार्क्स कभी भारत नहीं आया, मार्क्स कभी भारत नहीं आया, लेकिन वो भारत के बारे में खूब लिखता है, वो भारत के बारे में खूब लिखता है, और लिखता है कि इंडिया इज अ पेक्यूलियर कंट्री। न्यूयॉर्क हेराल्ड में 1853 में उसके 2 लेख छपते हैं, जिसमें वो लिखता है कि इंडिया इज अ पेक्यूलियर कंट्री बिकॉज दे आर वर्शिपिंग काउज एंड मंकीज। भारत विचित्र देश है, वो गायों और बंदरों की पूजा करता है। मैक्स वेबर लिखता है कि 2 सोसाइटीज कैन नेवर कम अप, दैट इज इंडिया एंड चाइना। दूसरे देश का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी वो लिखता है कि 2 सोसाइटीज कैन नेवर कम अप, दैट इज इंडिया एंड चाइना, बिकॉज दे बिलीव इन कर्म एंड रीबर्थ। और शायद यही कारण है कि पूरे पाश्चात्य जगत में, यूरोप में, अमेरिका में जो स्वामी विवेकानंद के भाषण होते हैं 1893 में, आपको आश्चर्य होगा जान के कि पूरा भाषण वो देते हैं, और 79 बार उन भाषणों में ये रिकॉर्ड पे है कि पूरी बात करने के बाद, पूरी भारतीय मनीषा के बारे में बताने के बाद, वो कहते हैं कि बट यू वेस्टर्नर्स विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। वो सारी बात कर लेते हैं और कहते हैं कि लेकिन आप इसे समझ नहीं पाएंगे, आपने इसको जिया नहीं है। लेकिन विडंबना ये हुई कि हमने उसी मार्क्स, उसी मैक्स वेबर के चश्मे से अपने देश को देखना शुरू कर दिया, अपने समाज को देखना शुरू कर दिया, अपनी व्यवस्थाओं को देखना शुरू कर दिया। उनकी मानसिकता को नहीं हम समझ सके, वो क्या चाहते थे इसको हम नहीं समझ सके, और हमने अपने को कमतर मान लिया। हमने अपने को, जो सभ्यता दुनिया के, जब बाकी देश अभी शैशवावस्था में थे सभ्यता के, और उस समय हम माता भूमि पृथ्व्याम पुत्रोहम, अभी एडीएन वाजपेयी साहब कह रहे थे, हम उस रागात्मक संबंध की बात कर रहे थे। हम पे आरोप लगा कि भारत एक राष्ट्र कभी नहीं रहा। हम उस समय, हमारा विष्णु पुराण कह रहा था कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। आज भी जो नेशन की का जो कॉन्सेप्ट है, जो राष्ट्र की संकल्पना है, वो इससे अलग है क्या? आप देख के बताइए मुझे। आज भी जिसमें हम पूरी बाउंड्रीज बताते हैं और कहते हैं भारतीय यत्र संतति, अगर आज भी पॉलिटिकल साइंस ये कहता है कि नेशन मीन्स द फीलिंग ऑफ वननेस। हम उस एक होने की बात कर रहे थे कि ये हिमालय के नीचे, हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर जो पूरा भूभाग है वो भारत है, और इसकी संततियां भारतीय हैं, ये विष्णु पुराण कह रहा था। और हम पे आरोप लगा, उन्होंने मजबूरी थी उनकी लगाना, लंबे समय तक हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाए रख सके वो, इसके लिए उनकी मजबूरी थी ये आरोप लगाना। हम पे ये आरोप लगा कि भारत कभी एक राष्ट्र हो ही नहीं सकता, ये तो कम से कम 16-17 राष्ट्रीयताओं का समूह है। It's a set of minimum 16 nationalities. We were released that. हम पे ये आरोप मढ़ा गया। इसका सही तरीके से मंथन करना चाहिए। और एक बात मैं और बताऊं, जो अभी ये बात हो रही है ना कि हिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग के साथ लिटरेचर भी पढ़ेंगे। अभी भी IITs में है बहुत जगह, लेकिन वो बहुत दोयम दर्जे पे है, उसको बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, बराबरी के क्रेडेंशियल्स नहीं मिलते, इसलिए वो कोरम पूरा होता है, खाना पूरी होती है। तैत्तरीय उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद का एक उदाहरण मैंने दिया, तैत्तरीय उपनिषद में एक और बात मैं आपसे बताऊं। तैत्तरीय उपनिषद में एक प्रसंग आता है, बहुत अच्छा प्रसंग मुझे लगता है ये, कि जब विद्यार्थी की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो गुरु उसका हाथ पकड़ता था और उस क्षेत्र में, उसके आश्रम के क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा स्थान होता था, उस ऊंचे स्थान पर ले जाता था। इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके संदर्भ बहुत बड़े हैं। उस ऊंचे स्थान पर उसको ले जाता था और वहां से वो कहता था कि तुम अपने चारों तरफ देखो और देख के बताओ कि यहां से जितनी चीजें तुमको दिखाई दे रही हैं और जितनी चीजें तुम्हें परोक्ष रूप से जो तुमको दिखाई नहीं देती, जमीन के अंदर है, उसके बारे में तुम जानते हो,
क्या तुम्हें उतनी सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त हो गया है? जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त हो गया है? और जब वो विद्यार्थी कहता था, जब वो स्टूडेंट कहता था कि यस आई नो, और तब उसकी शिक्षा पूरी मानी जाती थी। ये वर्सेटैलिटी थी, ये व्यापकता थी शिक्षा व्यवस्था की। आइए अगले बिंदु पे इसके चलते हैं। पहली बार जो भारतीय अप्रोच है, इंडो सेंट्रिक अप्रोच है, वो पूरी तरह से इस डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है। आप 60-65 पेज के इस डॉक्यूमेंट से गुजरे तो पहली बार जो वास्तव में भारतीय अप्रोच है वो दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल एजुकेशन में, हायर लर्निंग में, हर जगह भारतीय भाषाओं का विकल्प, और बच्चों के लिए तो खास करके भारतीय भाषाओं का विकल्प दिया गया है। केवल हिंदी का नहीं, मातृभाषा का विकल्प दिया गया है। और उसके साइंटिफिक रीजंस हैं। भाषा तो कभी भी 3 से 6 महीने में सीखी जा सकती है। भाषा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी भाषा, अगर आपका आईक्यू ठीक है तो इट विल टेक नॉट मोर देन 3 months, 6 months टू लर्न एनी लैंग्वेज। काम चला हुआ स्तर की। और मैं आपको बताऊं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक यद्यपि मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन उनसे मेरी लगातार चर्चा इस बारे में हो रही थी, प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे। उन्होंने बताया कि हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है कि 45 दिन में, हमारे पास बोल रहे थे कि स्विट्जरलैंड से एक 15-20 विद्यार्थियों का एक समूह आया जिसके पास 45 दिन से अधिक का समय नहीं था, और 45 दिन में हिंदी उनको कैसे सिखा दी जाए, इसका मॉड्यूल उन्होंने तैयार किया। हिंदी सीख के जाते हैं वो 3 महीने में, बहुत अच्छी हिंदी सीख के जाते हैं, जिस हिंदी को हमारे ही देश के कुछ तथाकथित अधकचरे पढ़े लिखे लोग कहते हैं बड़ी कठिन है। अभी कुछ समय पहले तक दिल्ली में अगर मंचों पे हिंदी बोल दीजिए, ठीक है, अंग्रेजी जानना या बहुत सारी भाषाएं जानना बहुत आवश्यक है, लेकिन हमारा मौलिक चिंतन उसमें हो ही नहीं सकता। और शायद ये बड़ा कारण है कि हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में हमारी कोई यूनिवर्सिटी जगह नहीं बना पाती। एक बहुत बड़ा कारण, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम मौलिक चिंतन जब अपनी भाषा में नहीं करेंगे, मौलिक चिंतन केवल अपनी भाषा में होता है और हमको पढ़ाई दूसरी भाषा में करनी है। और बच्चों के साथ तो ये अत्याचार जैसा है। उसकी सारी क्रिएटिविटी, उसकी सारी सृजनात्मकता। सर ये मैं अभी प्रश्न का मौका दूंगा आपको, बताइए। मैं जो भी बात कह रहा हूं उसके लिए प्रश्न का मौका दूंगा। और आप टॉप 20, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं, टॉप 20 जो कंट्रीज हैं जीडीपी के लेवल पे, जीडीपी के स्तर पे जो टॉप 20 देश हैं, उनका एक बार आप उठा के देख लीजिए। उनको एक बार उठा के बहुत दिमाग को थोड़ा सही एंगल पे रखते हुए, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, आप उनको एक बार देख लीजिए। आपको ये दिखाई देगा कि भारत के अलावा जो 19 देश हैं, वो उनमें सभी में शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा है। शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा है। और इसी में जो बॉटम 20 कंट्रीज हैं उनको देख लीजिए, सबसे नीचे के 20 देश हैं, वहां सब जगह विदेशी भाषा में पढ़ाई होती है। वो गुलाम रहे, आज भी उस गुलामी से बाहर नहीं निकल सके, आज भी उस मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल सके, और वहां विदेशी भाषा में पढ़ाई होती है। और बॉटम 20 कंट्रीज है, टॉप 20 कंट्रीज, इससे बड़ा प्रमाण मैं नहीं दे सकता कि टॉप 20 कंट्रीज जो जीडीपी के आधार पे हैं, आज विकास का मानक वही मानते हैं अपना, हम सभी मानते हैं। आप उठा के देख लीजिए, अमेरिका से शुरू कीजिए, और उनकी अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, ये तय है। भारत के अलावा, भारत भी उस लिस्ट में है, टॉप 10 में है, 5वें-6ठे स्तर पे स्थान पे है। और सोमालिया, नामीबिया जैसे देशों को देख लीजिए, वो सब जगह विदेशी भाषा में पढ़ाई होती है। अभी आईआईटी कानपुर में हिंदी में परीक्षा देने की अनुमति कुछ वर्ष पहले मिली है। मैं ये नहीं कहता कि आप विदेशी भाषाएं मत सीखिए, आप जितनी भाषाएं, त्रिभाषा फार्मूला चला रहा है वो इसमें भी है, आप जितनी भाषाएं चाहे सीख लें, लेकिन उसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए, वो ज्ञान का मानक नहीं होता। एक कारण ये भी था कि मैं अपनी पूरी बातचीत हिंदी में करूं, वो ज्ञान का मानक, ये बात मैं अंग्रेजी में कहता तो शायद इतनी प्रभावी नहीं होती, वो ज्ञान का मानक नहीं होता है। अंग्रेजी थोपने के 200 वर्ष के बाद, I'll take not more than 5-7 minutes, 1 घंटे मुझे कहा गया था, 5-7 मिनट और लूंगा मैं। अंग्रेजी थोपने के 200 वर्ष के प्रयास के बाद भी 2011 का जो सेंसस होता है, 2011 का जो सेंसस होता है, उसमें केवल 12% लोग ये कहते हैं कि उनको अंग्रेजी आती है। उसमें भी कितने को आती है मालूम नहीं, उसमें भी कितने को सही में आती है मालूम नहीं।
88% ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनको अंग्रेजी नहीं आती। इस देश की स्थिति यह है, जबकि 200 वर्ष इस देश में हर स्तर पे अंग्रेजी को बढ़ावा देने का प्रयास हुआ, इसके बावजूद ये स्थिति है। इसके बाद आगे जो एक इस नए डॉक्यूमेंट में ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन की बात है। पहली बार मैं फिर वही कह रहा हूं कि किसी सरकारी डॉक्यूमेंट ने विश्व गुरु शब्द का प्रयोग किया है, और एक ही लाइन के दूसरे हिस्से पे बवाल खूब मचाया गया जब ये डॉक्यूमेंट आया। तो कह रहे साहब बाहर से यूनिवर्सिटीज बुलाई जा रही हैं। उस पंक्ति का जो पहला हिस्सा है एजुकेशन पॉलिसी उसको दबा दिया गया। उसमें कहा गया है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी मोटिवेटेड और प्रोमोटेड टू ओपन कैंपसेस इन द एंटायर वर्ल्ड। भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनको दुनिया के दूसरे देशों में नए केंद्र खोलने चाहिए और बाहर से विदेशी संस्थानों को यहाँ इनवाइट करना चाहिए, बाहर के विश्वविद्यालय यहाँ आए और फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए यहाँ विशेष सेल बनाया जाए। टीचर्स के रिक्रूटमेंट की बात की गई, बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है कि एडहॉकिज्म बंद होना चाहिए। एक बड़ी बात है जो एडहॉकिज्म के आधार पर टीचर्स की भर्ती होती है वो बंद होना चाहिए। जो जीडीपी है वो 1.7% से बढ़ाकर 6% के आसपास करने की बात की गई। मैं बहुत उसके जो सैलरी हैं उनको एक बार और बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट में इसको कंक्लूड करते हुए मैं अपनी बात पूरी करूं। आरटीई का विस्तार किया गया इसमें, राइट टू एजुकेशन का। जो राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के लिए था उसको बढ़ाकर 3 से 18 वर्ष के बीच किया गया। बहुत अच्छा कदम है ये। ड्रॉप आउट रेशियो को कम करने के बहुत सारे प्रयासों की बात की गई है। अर्ली सीसी की बहुत स्पष्टता के साथ बात की गई है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जिस पे अभी तक ध्यान नहीं था। अभी तक हम फर्स्ट के आगे ही पढ़ाई को मानते थे। जो उसके पहले जो 3 साल के आसपास में पढ़ाई शुरू हो जा रही है, जिसमें विकल्प केवल और केवल प्राइवेट विद्यालय ही हमारे पास बचते थे, उस पर अब सरकार ने ध्यान दिया है। जो 5+3+3+4 का सिस्टम है उस पर बहुत सारी बात आप लोग अब तक जानते होंगे, इसलिए उसको नहीं दोहराऊंगा। लेकिन उसके पीछे जो यहाँ से बात शुरुआत हो रही है, अर्ली सीसी, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, 2035 तक जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का रेशियो है उसको बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य है। अभी वो रेशियो 26% के आसपास है। 2035 तक ये लक्ष्य है कि हायर एजुकेशन में जो विद्यार्थी पहुंचे उनका इनरोलमेंट रेशियो जो हो 50% तक बढ़ जाए। एक बड़ा लक्ष्य है ये। जो टीचर्स रिक्रूटमेंट है वो स्थायी रूप से हो, जैसा मैं कह रहा था, एडहॉकिज्म बंद हो, अच्छे टीचर्स आए, बेहतर टीचर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मातृभाषा को तरजीह दी जाए, त्रिभाषा फार्मूले को वैसे ही रखा गया है, ये कहा जाए। हायर एजुकेशन में जैसी मैंने खूब विस्तार से चर्चा की, कोशिश यही किया कि पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से ही उस पर बातचीत करूं जहां विस्तार की जरूरत थी, क्योंकि उन तथ्यों को दोहराने का मतलब नहीं है, उसके पीछे जो विचार है उनको आपके साथ बातचीत करनी थी। मुझे बच्चों से बात नहीं करनी थी, मुझे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक मैसेज आया कि थोड़ा और ऑर्गेनाइज होना चाहिए था। बहुत सारे अच्छे, सैकड़ों अच्छे मैसेजेस भी आए, लेकिन ऐसा होता है ना कि ध्यान तो जिसमें थोड़ा आलोचनात्मक है वहीं जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल उसके तथ्यों की बात आपसे कर सकता था, जिससे मैंने अपने को रोका, उस विस्तार पे गया, उस वैचारिकी के पीछे क्यों ये हुआ, इसके पीछे क्या है, उस तक मैंने जाने का प्रयास किया और आगे इसके परिणाम क्या होंगे ये चर्चा करने का प्रयास किया आपसे। एक आध चीजें इसमें थोड़ी अभी और इन चर्चाओं से निकल के आएंगी। डॉक्यूमेंट में थोड़ा उसमें ब्लर है वो, या थोड़ी उसमें मुझे लगता है कि ये बातें और ठीक से स्पष्टता के साथ जोड़नी चाहिए। शिक्षा का जो व्यापारीकरण है उस पे क्या स्पष्ट है। जब कैपिंग की बात की गई है कि फीस की कैपिंग होगी, जो मार्जिनल सेक्शंस हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनकी भागीदारी को और कैसे, उनके बच्चों को और कैसे महत्व मिले, इस पे थोड़े और स्पष्टता के साथ जाने की जरूरत है। इन बातों के साथ निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम है जिसमें शिक्षकों का सहयोग, जिसमें शिक्षकों का साथ ही इस पूरे डॉक्यूमेंट की सफलता को तय करेगा। इस चीज के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
Thank you, Shivangi. Thank you so much, sir. I must say that you have delivered this lecture in the most precise manner, and it is our honor to hear such an eminent and learned speaker as you. All of us are in awe of your knowledge and wisdom. Thank you so much, sir. Now I would like to request Professor Manisha Shukla ma'am. Ma'am, please give your fruitful review about sir and the session. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. नमस्कार सर. इस पूरे इस पटल पर मेरे लिए शब्दों को उजागर करना या शब्दों में कहना बहुत मुश्किल हो रहा है. इतने विद्वत जनों के साथ हम सभी ने आज 2 घंटे की लगभग चर्चा को विस्तार से सुना, और जिसमें मूलतः जो मेरे हृदय में भी बसता है, देश की संस्कृति सभ्यता और देश के प्रति एक गर्व का भाव आना, ये एक बहुत ही हमारी मौलिक आवश्यकता थी. बेसिकली जबकि यदि देखा जाए तो मेरी अपनी एजुकेशन का माध्यम अंग्रेजी ही रहा, और पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग होने के बाद मैं अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई लिखाई करी. लेकिन जहां तक संबंध, समझ और मूल भाव की बात आती है, तो भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा के प्रति जो अपनी एक विश्वास है, आश्वस्ति है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं हुई. हमेशा ये शब्द मन में कचोटते रहे कि इतनी एक अच्छी संस्कृति सभ्यता के पुत्र पुत्री होने पर भी हम उनसे वंचित क्यों रह गए. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि इस समय हमारे सबके समक्ष धीरे धीरे पन्नों में खुल रही है, उसको समझकर, जानकर और आप सब विद्वत जनों के प्रबोधनों को सुनकर हम सब अपने आप में आश्वस्त हो रहे हैं कि हम भी गर्व से एक पूरे विश्व पटल पर भारतीय होने के प्रति अपने आप में आश्वस्त हो पाएंगे. बीच में कभी कभी जब इन सारे संदर्भों को दिया जाता था, तो ये बात, जैसा कि आपने भी सर बार बार इस बात को इंगित किया कि ये जो कुछ एक थॉट, एक फिलॉसफी जो देश के प्रति धारणा को अलग प्रकार से प्रस्तुत कर रही है, उनके प्रति मन में एक आक्रोश तो रहता था. और नई एजुकेशन पॉलिसी में, जैसा कि हमने वाजपेयी सर के पूरे व्याख्यान को सुना और उपाध्याय सर आपके पूरे विस्तृत व्याख्यान को सुना, उसके प्रति मैं सादर नमन करती हूँ. और I feel so much so elated at present. मैं अपने आप में इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ, इतना रिच महसूस कर रही हूँ कि इस संस्कृति सभ्यता, जैसे आपने कहा कि हम रसायन के साथ अपने देश के इतिहास को यदि साथ में पढ़ सकते, तो ये हमारे लिए वाकई एक मील का पत्थर होता. हम सभी अपने आप में कितना अच्छा फील करते और आज महसूस कर रहे हैं, उसके प्रति अपने आप में आश्वस्त भी महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी गर्व के साथ अपने देश के बारे में, अपने देश की रिचनेस के बारे में, अपने देश की संस्कृति के बारे में विज्ञान पढ़ते पढ़ते, तकनीकी शिक्षा लेते लेते उनके प्रति भी अपने आप को जागरूक कर पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू सो मच फॉर sparing time for us and giving us such a detailed analysis of all this. और जैसा कि अभी हमने सर इसी पर्याय में हमने अभी कुछ वेद के अध्ययन भी किए हैं और कुछ हमारी वर्कशॉप्स भी हुई हैं, जिसमें IIIT हैदराबाद के प्रोफेसर शत्रुंजय रावत सर ने हम लोगों को लाभान्वित किया. और जब हम सारी रचनाओं को देखते हैं और पुरुष विशेष के अर्थ में अपने रचित वेदों को, वेदांगों को जानने का प्रयास करते हैं, तो समझ में आता है कि विज्ञान, तकनीकी, इन सभी संदर्भों में हम कितने प्रखर थे. और अब मौलिक भाषा में, अपनी मूल भारतीय भाषाओं में यदि इनका हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो भाव के साथ पूरी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे और हम अपनी उन ऊंचाइयों को देख पाएंगे
जिनमें हम किसी समय जी रहे थे, रह रहे थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Manisha Shukla, ma'am. Now, sir, with your permission, we would like to take a few questions. Yeah, please. So the first question is from Professor Abha, and she asked that how can the quality of teachers coming in this profession be improved by this NEP? Yeah, NEP is talking about a 4-year degree course in place of 2-year. Earlier it was 1-year degree course only for B.Ed. So the mechanism has to be decided, but definitely means 4-year degree course will be very helpful for in the path of teachers training, you can say, and we can get good teachers, means better teachers. And definitely means as I told कि जैसे जैसे institutions की गुणवत्ता बढ़ेगी, उनकी जो autonomy है, graded autonomy की जो बात की गई है, वो बढ़ेगी। और इस रूप में जो धीरे धीरे ये है कि अगले 10 वर्षों में 2030 तक जाते जाते जो 2 साल का अभी B.Ed कोर्स चल रहा है उसको हम 4 साल में परिवर्तित करें और उसको बहुत जो एकेडमिक राइगर है उसके साथ मंशा है कि टीचर्स की क्वालिटी उससे बेहतर बने और एडवोकेजम खत्म हो डेफिनेटली थोड़ा और जी। सॉरी सर, मेरा प्रश्न उच्च शिक्षा में आने वाले शिक्षकों के से संबंधित था। जो उच्च शिक्षा में जो एज ए प्रोफेसर जो आते हैं, आज के समय में कोई ये करियर सोच के नहीं चलता है कि मुझे प्रोफेसर बनना है। ये सभी का अंतिम चॉइस होता है, जैसा आपने मेंशन भी किया अपने व्याख्यान में। तो मैं जरा सा उस तरफ मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी ये नई शिक्षा नीति किस तरह हमारी सर्वोच्च मेधा को इस ओर आकर्षित कर सकती है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो समर्पित हो इस प्रोफेशन के लिए और उनकी मेधा का स्तर भी वैसा हो, जो आजकल IITs में जाते हैं, फिर सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो इस टीचिंग में, इस उच्च शिक्षा में ऐसे लोग किस तरह आ पाएंगे, जरा सा सर इस पर बताएं। धन्यवाद सर। अभी हायर एजुकेशन को लेके जहां तक बात है, मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कुछ वर्ष पहले तक की स्थिति में और अभी थोड़ा सा परिवर्तन मुझे वो दिखा, और उसके पीछे जो चीजें हैं, कुछ बातों को मैं नहीं बोलना चाहूंगा पब्लिक डोमेन में, लेकिन वो शायद आपको समझ में आए कि आज जो रुचि बढ़ी है एक विद्यार्थियों की। अभी मैं BHU का जिक्र कर रहा था कि 2 साल पहले जो वहाँ दीक्षांत समारोह हुआ, उसके बाद बच्चों के जो इंटरव्यू छपे पेपर्स में, उसमें 70% गोल्ड मेडलिस्ट ने कहा कि वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो UPSC नहीं जाना चाहते। अभी जो UPSC करने के बाद विद्यार्थी की जो स्थिति होती थी, डेफिनेटली IIT करके जाने वाला विद्यार्थी तो IIT में टीचर हो जाता है या होता है, और यहाँ पर जो एक स्थिति आ रही थी कि जिसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, वो आता था और फिर कुछ साल एडहॉक टीचर के रूप में, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, एडहॉक टीचर, और फिर बैकडोर से उसकी एंट्री हो जाती थी। वो धीरे धीरे बंद हो गया, 2013-14 के बाद तो पूरी तरह से बंद हो गया। अब जो दूसरे जो लुक्रेटिव सो कॉल्ड लुक्रेटिव पोजीशंस थी, जिसके लिए हम सभी सारे विद्यार्थी जब निकलते थे और सबसे पहले जो बेस्ट ब्रेन है उधर जाने का प्रयास करता था, वहां जो चीज शायद सबसे ज्यादा उसको आकर्षित करती थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। मैं फिर कहूंगा, गाड़ियों से बत्ती हटी, जो पूरा फॉलोअर सिस्टम है ब्रिटिशर्स का, वो धीरे धीरे सरकार की मंशा है खत्म कर देने की। अभी उसमें कुछ पेच हैं, क्योंकि अभी भी ISS का इतना प्राबल्य है, लेकिन वो पूरा सिस्टम खत्म करने की योजना है, वो खत्म होगा निश्चित रूप से। दूसरे तीसरे मैं केवल संकेत करूंगा कि केवल सैलरी ही मिलेगी, उसके अलावा जो चीजें मिलती हैं उसकी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। और ऐसे में फिर इससे बेहतर विकल्प दुनिया में, शायद जितनी भी सेवाएं हैं, इससे बेहतर विकल्प कोई और नहीं रह जाएगा। सांकेतिक तौर पे एक बड़ा कदम ये भी उठाया जा चुका है, पूरा ग्रेड सिस्टम, जो पे ग्रेड का सिस्टम है, और ये संकेत करता है कि IAS को शिक्षक पैदा करता है। IAS 5400 ग्रेड पे ज्वाइन करता है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर 6000 के ग्रेड पे ज्वाइन करता है। ये केवल ये संकेत करने के लिए 2006 में इसकी व्यवस्था हुई कि शिक्षक को ये महसूस ना हो कि जिस IAS को उसने पैदा किया वो उससे बेहतर स्थिति में जाके नौकरी कर रहा है। और जिन स्थितियों के लिए वहां का आकर्षण था, अब वास्तव में जो काम करने के मन वाला होगा या काम करने के मन से भी जाता था और बाद में जो
जो बहुत थोड़ी सड़ी हुई व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे जिस तरह से ठीक होने की ओर जा रही है, निश्चित रूप से अब ये जो बेस्ट ब्रेन्स हैं उनको आकर्षित करेगा हायर एजुकेशन, ऐसा मेरा मानना है। और इस डॉक्यूमेंट में स्पष्टता के साथ इसको लेके, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं वो अपने आप, मैं बहुत इसको लेके ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं बहुत आशावादी हूं कि ये स्थिति बदलने वाली है कुछ वर्षों में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। आपसे दोनों ही बातें उस समय मैंने कही थी कि 7-8 साल 10 साल पहले तक स्थितियां ये नहीं दिखती थी, 2-3-4 साल से ये स्थितियां मुझे बदली हुई दिख रही हैं। आप उठा के एक बार पढ़ना शुरू कीजिए। अभी इसके पहले एडीएन वाजपेयी साहब, ये मैं अंतिम में 10-15 मिनट उनको सुन सका था, वो चिंता ये व्यक्त कर रहे थे, उसी समय मेरे दिमाग में आया कि ये बात मैं जरूर करूंगा कि इसके पहले गोल्ड मेडल पाने वाले नहीं कहते थे कि उनको शिक्षक बनना है, अब कह रहे हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये स्थिति है कि 60-70% विद्यार्थी कह रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छा जीवन उनको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, अगर वास्तव में वो शिक्षक बनने के मन वाले हैं तो। क्योंकि वास्तव में मूलतः, मैं कई बार, मेरे गुरु कहा करते थे, मैं उसके मायने अभी भी तलाश रहा हूं, कि पूछते थे तुमको क्या बनना है, और उसका जवाब वो देते थे कि वही बनो जो तुम हो। इसलिए तलाशना तो तुमको है कि तुम हो क्या, जो हो वही बनने का प्रयास करो। समस्या ये होती है कि हम ठेकेदार बनने की कैपेबिलिटी है, या हमारा जो मूल गुण है वो है, और हम शिक्षक बन जाते हैं। समस्या ये है कि हमको पुलिस अधीक्षक बनना चाहिए था, लेकिन हम यूनिवर्सिटी में टीचिंग करने लगते हैं। तो ये जो समस्या है, ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे दूर होने की ओर जा रहा है। जी सर, आपने बहुत ही सुखद दिनों की ओर इशारा किया है, लेकिन एक छोटा सा मैं प्रश्न और जोड़ना चाहूंगी कि हम शिक्षक जगत को नियंत्रित करने वाले तो शिक्षा सचिव जो है वो तो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, और इस नीति में उस तरफ तो किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। नहीं, खूब इस पे बात हुई है। मैं बताऊं कि कुछ मीटिंग्स में मैं भी रहा हूं, पीछे ही बैठ के सही, लेकिन रहा हूं, और जहां पे बहुत सारे लोगों ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि अब जो कुलगुरु हैं, कुलपति हैं, कुलपिता हैं, कुलपति हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको they should be given charge of this higher education secretary and these positions, means IAS ही उसको करे। और इसकी शुरुआत, पता नहीं शायद आपने ध्यान दिया या नहीं, 2019 में मोदी जी की सरकार ने कर दिया। वो ऐसे बहुत सारे मंत्रालयों में कुछ एक्सपर्ट्स को लेके आए IAS की पोजीशंस में, जैसे JS के, मैं जाना चाहूं, मैं IAS नहीं हूं, मैं डायरेक्टर तक तो होऊंगा, मुझे JS, मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ, वहाँ डायरेक्टर बना दिया जाएगा मुझे डेपुटेशन पे, लेकिन JS नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, क्योंकि ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के बाद मैं सेक्रेटरी हो सकता हूं हायर एजुकेशन का। अब ये व्यवस्था टूट गई, पिछले साल इसका आगाज हो चुका है, और आगे इस पे खूब बातचीत हुई है मंत्रालय में इसको लेके कि आगे ये तय किया जाना चाहिए। क्योंकि IAS के सोचने का एक तरीका, मैं ये नहीं कहता कि वो तरीका हमेशा गलत ही होता है, लेकिन एक जो 30 साल 35 साल 25 साल जिसने तपाया है, अपने को गुरु के रूप में जलाया है, वो शायद ज्यादा बेहतर पॉलिसीज, और एक यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला के आ रहा है कोई वाइस चांसलर, तो उसको ग्राउंड लेवल के सारे प्रॉब्लम्स उसके ध्यान में होते हैं। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से गुजरा होता है अपने शिक्षक जीवन में, अपने, हो सकता है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार रहा हो सकता है 10वीं कमिटीज का मेंबर रहा हो, और बाद में वाइस चांसलर रहा हो। अगर ऐसे व्यक्ति को उठा के आप ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बना देते हैं हायर एजुकेशन का, तो उसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। इस पर खूब चर्चा हो रही है और खूब मांग भी हो रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई महान शिक्षाविद हमारे सचिव होंगे। जिस तरह से IAS की मोनोपोली को पिछले साल, वही मैं कह रहा हूं कि 10 मंत्रालयों में संभवतः 10 लोगों को ऐसे इंडस्ट्री सेक्टर से उठाया गया कि भाई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, अगर पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा अधिकारी जिसको उसके सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पता हैं, वो आ जाए तो ज्यादा बेहतर काम करेगा, वो ज्यादा बेहतर पॉलिसी मेकिंग कर सकता है। ये पिछले साल तोड़ दिया वो IAS की मोनोपोली। 18-19 में उसके फॉर्म निकले और कई सारे लोगों को इस तरह से भर्ती किया गया। इसलिए इस रास्ते पे हम जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं इतना ना मेरी दूरदर्शिता है और ना, लेकिन ये चल रहा है और इस पे काम होगा निश्चित रूप से। हो सकता है आपको कुछ दिनों बाद ये देखने को मिले कि किसी विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति उच्च शिक्षा सचिव है। जी, Thank you so much, ma'am. धन्यवाद sir. Sir, another question is from Professor Yogesh Kumar, and he asked that is there common data bank for scriptures such as Upanishads, Vedas, with the translation which can be used for research purpose? Yeah, I couldn't get your voice, Sivangi.
Ishita, you are not audible. Ishita, All right, ma'am. yeah, you are not audible. Please. Okay, sir, I'll repeat that Professor Yogesh Kumar asked that is there a common data bank for scriptures such as Upanishads, Vedas with translation which can be used for research purposes? Yeah, definitely. What sort of data bank he wants to know about, I don't know, but for research purposes, I think all these scriptures, they are digitized, and we can easily access to them from home even, and we can use these scriptures. Yes, it's there. बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमारे पास सब उपलब्ध है अब, सारे वेद उपनिषद, सारे उनके मूल भी, उनके ट्रांसलेशंस भी सब उपलब्ध है, बहुत आसानी से हम उनको एक्सेस कर सकते हैं. जी. Sir, Dr. Alka Singh ma'am wants to ask question. Ma'am, you can unmute yourself. I think there are some connectivity issues. So I'll read the another question. Sir, Shubham Kesarwani sir asked that whether B.Ed program going to be 1 year for post-graduation student? इशिता जी, एक मैं अभी मैसेज आया उसको, Yes, sir. थोड़ा उस भ्रांति को दूर करना चाहूँगा. Yes, निश्चित sir. हर जॉब की मर्यादा है, और हम तुलनात्मक तरीके से कहीं भी किसी चीज को कमतर नहीं आंक रहे हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आईएएस या आईपीएस या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनका जो काम है वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं. वो प्रशासन पूरा इस देश का उन्हीं से चल रहा है, कतई ऐसा नहीं है. एक मैसेज ऐसा आया, मैं दो चीजों की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन आप उस बात के मर्म को समझिए. वो जिले का प्रशासन चला रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हीं को चलाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग उसी के लिए है. लेकिन शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी ये शायद एक शिक्षक ज्यादा बेहतर बता पाएगा, जिसमें प्रशासक का भी दायित्व, प्रशासक का भी गुण हो. तो कोई कुलपति जो अपने प्रशासनिक क्षमता को भी स्पष्ट कर चुका है, वो किसी आईएएस से बेहतर चलाएगा, ये मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहता हूँ. नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या नेशनल आर्काइव्स जिस तरह से एक हिस्टोरियन चलाएगा, जिस तरह से एक इतिहासकार उसको समझेगा, देखेगा, उस तरह से एक आईएएस समझ सके, मैं ऐसा नहीं मानता. आईएएस का अपना क्षेत्र है, आईपीएस का अपना. किसी आईपीएस को उठा के आप कहो कि आप नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, और ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है कि आप राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का प्रशासन आपको चलाना है, उसको 2 साल तो उन चीजों को समझने में ही लग जाएगा, तब तक उसका टेन्योर खत्म होने का समय आ जाएगा. लेकिन अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट को उठा के, किसी वास्तव में उसके विशेषज्ञ को उठा के, जिसकी प्रशासनिक क्षमता, मैं पुनः कह रहा हूं, जिसकी प्रशासनिक क्षमता प्रमाणित है, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि किसी भी शिक्षक को उठा के आप बना दीजिए. आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने ये कहा था कि आप ऐसे शिक्षक को जिसने अपनी प्रशासनिक क्षमता किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय या राज्य विश्वविद्यालय के वीसी रहते हुए प्रमाणित की, ऐसे को उठा के जब आप शिक्षा सचिव बनाएंगे तो उसके परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होंगे. और मैं पुनः अपनी बात पे कायम हूं, दोहरा रहा हूं. इस बात को अगर शब्दों में शायद मुझसे अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो, मैं नहीं जानता, मेरी अभिव्यक्ति बहुत स्पष्ट रहती है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ. जी बताइए. सर, क्या वाइस चांसलर क्या का नाम, ये बताइए. ये तो पॉलिटिकल पद होता है, चाहे जो वाइस चांसलर बनता है, क्या ईमानदारी सब बनते हैं, क्या बताइए. ये दूसरे तरह का प्रश्न है. नहीं, दूसरे तरह नहीं, जैसे आप यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं. मनीष जी बोल रहे हैं ना जी. जो भी जो वाइस चांसलर है, मैंने फिर कहा कि जिसने अपनी प्रशासनिक क्षमता को स्पष्ट किया, प्रशासनिक क्षमता अपनी प्रमाणित की हो. और इतने बड़े पद पे कोई भी सरकार, वो XYZ कोई सरकार है श्रीमन, वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं रखेगी जिसकी प्रशासनिक क्षमता प्रमाणित ना हो. केवल वो किसी वैचारिकी से, किसी आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड है, इसलिए वो नहीं उठा के रख देगी. वो केवल XYZ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, इसलिए नहीं उठा के रख देगी, क्योंकि उसको उससे पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चलानी है, अगली बार फिर सरकार में उसको आना है. इसलिए वो बहुत सोच समझ के ये चीजें होती हैं, है ना. इसलिए इस स्तर पे इतनी हल्की बातें नहीं होती. हो सकता है वाइस चांसलर बनने में जो आप कह रहे हैं वो सच्चाई हो, मे भी संभव है, लेकिन शिक्षा सचिव बनाते हुए और वहां भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं भेज दिया जाता जो विश्वविद्यालय चला ही ना पाए, वो अक्षम साबित हो, ऐसा नहीं होता. जी. Thank you so much, sir. Sir, I think we are exceeding the time limit now. So this is a
information to participants that you can submit your questions and we will mail it to sir and we will forward the answers to you. I'll try my level best to just give सर answers. यूनिवर्सिटी में किसी शिक्षक को सुना जाता है, बताइए पहले मेरी बात। यूनिवर्सिटी में किसी शिक्षक को सुना जाता है, वाइस चांसलर सुनता है किसी का? आप आप बताइए। मेरा नंबर ले लें सर, हम लोग बात नहीं, कर लेंगे क्योंकि इसमें नहीं, 250 लोग हैं। सर कोई नहीं सुनता वाइस चांसलर, कोई शिक्षक विरोध नहीं करता वाइस चांसलर को, मैं आपसे बात कर लूंगा अलग से। 250 लोग हैं और एफडीपी का जो दायरा है, जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का दायरा है, उससे हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग बात कर लेंगे। आप मेरा Dr. Santosh Kumar sir, this is a humble request. Kindly maintain the decorum of the session. We will share the contact info of our respected resource person, sir, so you can discuss with sir. I'll talk to sir. Yes. मैं बिल्कुल बात करूंगा सर आपसे। स्वागत है आपका। Thank you again. Yes. Thank you again, Dr. Omji Upadhyay, sir. And it was our pleasure that you came and bestowed your words to us. Thank you so much, sir. Now, again, information for participants, that feedback link will be shared right now and you will be given extra time to fill the feedback form. So please have patience. And in the meanwhile, I would like to call Mr. Adarsh Dwivedi for the formal vote of thanks. Thank you, Ishita. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful third day of faculty development program. Today, my words are not enough to express the gratitude on the behalf of Babu Banarsidass Educational Group. I would like to thank our resource person, Professor Arun Divakar Nath Bajpayee sir and Dr. Omji Upadhyay sir, who graced us with his thought-provoking address at a perfect platform. You have explained in such a nice way the concept of new education policy. Thank you very much for such an informative session, sir. Thank you for reminding us the importance of Hindi. Sir, I want to tell you that everything I have read about both of you, I have found you in the same way. I am feeling blessed to introduce today's resource person. Glad to hear both of you, sir. You have explained participant queries in such a nice way. I hope this fruitful session will add value to the participant lives and they can apply it to their potential goal. Thank you so much for such a fruitful session, sir. I would like to thank our respected Chief Patron, Mrs. Alka Das Gupta ma'am, Chairperson, Babu Banarsidass Group of Education, Shri Viraj Sagar Das sir, President of Babu Banarsidass Group Education, Dr. Arvind Jamgetkar sir, Chairman of ICHR Ministry of Education, Government of India, Professor Ramesh Chandra Singh sir, Chairman Indian Council of Philosophical Research, Ministry of Education, Government of India, our respected patron, Professor Dr. A.K. Mittal sir, Vice Chancellor, Babu Banarsidass University, Professor Dr. Bhavesh Kumar Chauhan sir, Director BBD ITM, Professor Kumar Ratnam sir, Member Secretary ICHR and ICPR, Ministry of Education, Government of India. And for you, sir, Dr. Omji Upadhyay sir, Director Indian Council of Historical Research, Ministry of Education, Government of India, and Professor Dr. Monica Mehrotra ma'am, Director, Babu Banarsidass Engineering College, Lucknow. And our organizing secretary member, Dr. Suresh Kumar Singh sir, Assistant Director Seminar, ICHR, Ministry of Education, Government of India. My heartfelt thanks goes to Dr. Shivangi Tiwari ma'am, without whom this FDP cannot be possible. Thank you ma'am for all words of wisdom that radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful to you and we thank you for being with us every time. I would like to thank our organizing coordinators, Dr. Sushim Dubey sir, Programming Officer, ICPR, Ministry of Education, and at last, Ms. Priyanka Singh ma'am, Assistant Professor, Department of Management, BBD ITM, Lucknow. We feel proud and thank you for making us feel happy with your presence to this function. An event of the dimension cannot be happen overnight. The wheels start rolling weeks in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated student coordinators, Ishita Mishra, Simran Singh, Prakhyat Jaiswal, and Ayush Agarwal. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown
and the willingness they have expressed to take on the completion of the task beyond their comfort zones. Last but not the least, I thank all the participants for showing their interest in the Specialty Development Program. Once again, thank you very much to all who assembled here. Stay safe, stay happy, stay motivated. Thank you. Thanks a lot. Over Thank to you you. so